Today we are discuss on the topic of nucleic acid. First, we discuss on what is nucleic acid. Then, other other lecture we are discuss how it act on as a genetic material. So today we are discuss on nucleic acid. Nucleic acid. The term nucleic acid was given by Altman. This term is given by scientist Altman. This Altman is a scientist which are given the name of nucleic acid. Then nucleic acid are two kinds. First, deoxyribonucleic acid. First is deoxyribonucleic acid, which are also called DNA. Basically, DNA is genetic material in all living cells, but some exception like virus. In virus, the genetic material is RNA. RNA is genetic material in some virus, but most of the cells are the genetic material is DNA. Then अपने पास सेकंड जो है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड. Ribonucleic acid and second अपने पास deoxyribo. Two kind of nucleic acid. Then what is nucleic acid? Nucleic acid is a long chain or polymer of nucleotide. What is nucleotide? So we are discussing nucleotide. What is the nucleotide? Nucleotide is it has three kind of substance. First, nitrogenic base. Nitrogenic base. Second is phosphate group, and third is pentose sugar. Three kind of nitrogenic base, three kind of substance of nucleic acid. Three kind of substance of nucleic acid. First is nitrogenic base, second is phosphate group, third is pentose sugar. So first, nitrogen base. It contains nitrogen. Nitrogen base are further divided into two types. First is purine and then is pyrimidine. Purine and pyrimidine, two kind of nitrogen. Purine contain two kind of nitrogen base rings and pyrimidine contain only single type of nitrogen base. Means कि इसके अंदर प्यूरिन के अंदर दो नाइट्रोजन बेस की चेन होती है जो अपने पास रिंग्स होती है, और पायरिमिडीन है उसके अंदर अपने पास एक ही टाइप की नाइट्रोजन बेस की रिंग होती है. तो फर्स्ट प्यूरिन फर्दर क्लासिफाई टू टाइप्स. वन इज द एडेनिन and second is guanine. Adenine and guanine, two type of purine. And pyrimidine, in case of DNA, two type, or in case of RNA, two type. In case of DNA, thymine
and cytosine. In case of RNA, this is also two type. First is uracil and second is cytosine. Means cytosine is common DNA और RNA. cytosine DNA और RNA दोनों के अंदर मिलता है, जबकि थायमिन ओनली DNA के अंदर मिलता है और यूरासिल अपने पास RNA के अंदर मिलता है. देन ये फर्स्ट टाइप ऑफ जो न्यूक्लिक एसिड है उसके तीन चीज, जो न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीज से मिलकर बना हुआ. एक अपने पास नाइट्रोजनिक बेस, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर. फर्स्ट अपने पास नाइट्रोजन बेस है जो अपने पास दो टाइप के होते हैं. एक अपने पास होता है प्यूरिन, दूसरा होता है अपने पास पायरीमिडीन. प्यूरिन अपने पास फिर से दो टाइप के होते हैं, एक कहता है एडिनिन, दूसरा होता है गुआनिन. अगर अपन बात करें पायरीमिडीन की तो डीएनए की अगर केस में अपन बात करें तो पायरीमिडीन दो टाइप का है, एक अपने पास थायमिन, दूसरा अपने पास है साइटोसिन. इन केस ऑफ आरएनए के केस में अपन बात करें तो ये अपने पास साइटोसिन की जगह अपने पास यूरासिल आ जाता है, और जो थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है और साइटोसिन की जगह अपने पास साइटोसिन ही रहता है. अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो इस टाइप का H3PO4 होता है. H3 और PO4 होता है. इसका बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास कुछ इस तरह से होता है. देन अपन बात करें पेंटोज शुगर. इन केस ऑफ डीएनए, इन केस ऑफ डीएनए जो पेंटोज शुगर होता है उसके अंदर अपने पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है. इन केस ऑफ आरएनए बात करें अपने पास तो पेंटोज शुगर जो होता है उसके अंदर अपने पास जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है. तो अपने पास डीएनए और आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर डिफरेंट टाइप की होती है. अगर डीएनए की बात करें तो पेंटोज शुगर कुछ इस तरह से होती है. This is pentose sugar in DNA. In case of RNA, this sugar is called deoxyribose sugar. In case of RNA, this sugar is contain extra oxygen. Means deoxyribose means removal of oxygen. Deoxy means removal of oxygen. Where from ribose sugar. राइबोस शुगर है उससे अपने पास अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, जो अपने पास सेकंड नंबर कार्बन वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो अपने पास जो शुगर बन गई वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है. अगर आरएनए की बात करें तो इसी सेकंड नंबर कार्बन में अपने पास जो ओ आ जाता है. ठीक है, देन अपने पास सिमिलर होता है सभी कुछ. सभी जगह अपने पास सिमिलर है. डिफरेंट बिटवीन deoxyribose and ribose only oxygen which contain on second number carbon. Counting of carbon first, second, third and fourth and fifth. This is second carbon and second carbon से अपने पास क्या होता है जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है डीऑक्सीराइबोस, और जो शुगर डीएनए में मिलती है वो अपने पास डीऑक्सीराइबोस होती है. आरएनए के केस में अपने पास जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है. देन हम फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं. अब अपने पास अपन ने बात किया था न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. तो न्यूक्लियोटाइड में अपन ने बात किया था दिस इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियो. तो अपन आगे मूव करते हैं. अपने पास आगे की अपन बात करते हैं कि अपने पास नाइट्रोजनिक बेस अपने पास जो न्यूक्लियोटाइड का चेन है वो किस टाइप का होता है. फर्दर हम मूव करते हैं आगे की तरफ. देन न्यूक्लियोटाइड का जब फॉर्मेशन करना है तो अपन ने बोला है उसके अंदर अपने पास तीन चीज होती है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप. तो अपन ने तीनों के बारे में पढ़ लिया कि जो नाइट्रोजनिक बेस होते हैं
वो अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन, दूसरा पायरिमिडिन। प्यूरिन के बारे में अपन ने बात किया कि इसके अंदर अपने पास एडेनिन एंड गुआनिन होता है, और पायरिमिडिन के बारे में अपन ने बात किया कि इसके अंदर अपने पास साइटोसिन और थायमिन होता है डीएनए के केस में, और साइटोसिन और यूरासिल होता है आरएनए के केस में। दो टाइप के अपने पास अपने पढ़ा नाइट्रोजनिक बेस होते हैं। देन अपने पढ़ा पेंटोस शुगर। इसके अलावा पेंटोस शुगर में अपने बात किया कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर होती है, आरएनए के अंदर अपने पास राइबोस पेंटोस शुगर होती है। फिर अपने पढ़ा फॉस्फेट। अब अपन को आगे फर्दर मूव करना है कि अपने पास न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये किस तरह से अरेंज होते हैं। तो फर्स्ट अपन इससे भी अपन पहले एक और बात डिस्कस करेंगे कि अपने पास न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज इन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड अपने पास कंटेन करता है, न्यूक्लियोसाइड it contain only nitrogen base and pentose sugar with attached by glycosidic मीन्स अपने पास न्यूक्लियोसाइड होता है, उसके पास में नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर ही होता है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। अगर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए न्यूक्लियोसाइड के साथ में तो अपने पास जो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो अपने पास क्या है कि न्यूक्लियोसाइड है, उसके अंदर अपने पास दो ही चीज मिल रही है, एक तो अपने पास नाइट्रोजन बेस, दूसरा अपने पास पेंटोस शुगर। तो नाइट्रोजन बेस की अपन बात करें तो अपने ये बात पेंटोस शुगर की मैंने बात किया था, तो अपने बात किया था कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ये होता है। अगर अपने पास डीएनए की बात करें तो पास यहाँ पर H आएगा, और आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास OH आएगा, इस तरह से अटैच रहता है। देन इसी के ऊपर अपने पास आके अटैच हो जाता है इस फर्स्ट नंबर का यहाँ पर अपने पास नाइट्रोजन बेस आकर अटैच हो जाता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में, उस बॉन्ड को अपन बोल देते हैं अपने पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब इनके बीच में दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया तो ये फॉल स्ट्रक्चर अपने पास क्या कहलाएगा, अपने पास न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब इसका नेमिंग अलग अलग होता है सभी के अंदर। जैसे अपने पास अगर अपन बात करें डीएनए की, तो अगर अपने पास यहाँ पर अटैच होगा एडेनिन इन केस ऑफ इफ नाइट्रोजन बेस इज एडेनिन। नाइट्रोजन बेस अगर एडेनिन होगा तो वहां पर इसका जो नेम हो जाएगा वो एडिनोसिन हो जाएगा। इन केस ऑफ आर अगर यही अपने पास अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गए तो वहां पर अपने पास हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। दो टाइप का हो गया अपने पास, अब दो टाइप का हो गया अपने पास, एक डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर अपन बात करें इन केस ऑफ डीएनए के केस में अपन बात करें तो डीऑक्सी एडिनोसिन हो जाएगा, यही नाइट्रोजन बेस अपने पास न्यूक्लियोसाइड। अगर अपने पास अगर बात कर रहे हैं अपने पास आरएनए की तो अपने पास एडिनोसिन हो जाएगा। अगर फर्दर अपन मूव करें आगे की तरफ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड मींस कि अपने पास ये वाला स्ट्रक्चर ये तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, साथ में अपने पास क्या हो जाएगा अटैच विद फॉस्फेट ग्रुप। मींस अपने पास न्यूक्लियोसाइड अटैच हो जाएगा फॉस्फेट बाय एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड के साथ में अपने पास न्यूक्लियोसाइड अटैच हो जाएगा अपने पास किसके साथ, अपने पास फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो अपने पास जो बन जाएगा वो अपने पास न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। देखो अपने पास ये स्ट्रक्चर बन डिस्कस करते हैं। अपने पास इस तरह से अपने पास ये न्यूक्लियोसाइड था, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस था, देन यहाँ पर अपने पास इस तरह से अपने पास स्ट्रक्चर होता है कुछ। यहाँ अपने पास मैंने पढ़ा था फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड से हमेशा अपने पास रिमूव होता है OH।
और जो बेस होता है उससे अपने पास रिमूव होता है अपने पास H। तो H और OH यहाँ से निकलने से अपने पास H2 और रिमूव होने से अपने पास यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये जब बॉन्ड बनेगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर अपने पास बनेगा। नाइट्रोजन बेस, देन अपने पास CH2, देन अपने पास phosphate double bond O, OH and OH. This linkage between ribose sugar and phosphate group is called ester bond. First अपन glycosidic bond, second अपने पास ester bond. Glycosidic bond between nitrogen base and pentose sugar, then अपने पास phosphate group and जो शुगर है उसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो अपने पास एस्टर बॉन्ड है। तो टू टाइप के अपने पास बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर अपने पास न्यूक्लियोटाइड के अंदर, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेकंड अपने पास जो बनता है एस्टर बॉन्ड। इफ कंटिन्यूअसली एस्टर बॉन्ड बनता जाए 5 कार्बन के बीच में और 3 कार्बन के बीच में, तो अपने पास एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। कंटिन्यूअसली अपने पास जो है नाइट्रोजन बेस 3 कार्बन ऑफ OH एंड 5 कार्बन ऑफ OH, इनके बीच में अगर अपने पास कंटिन्यूअस एस्टर बॉन्ड बनता जाए तो अपने पास जो चेन बन जाएगी अपने पास वो बन जाएगी अपने पास न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड की चेन। और लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को अपन क्या बोलते हैं, अपने पास न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो I draw the structure of nucleotide. Polymer of nucleotide. Then first अपने पास nucleotide, this one. This one, second nucleotide, this one, then this OH is removed and H from here, then form ester bond. Again removal of water and form ester bond between sugar and phosphate. Two kind of ester bond formed between one sugar, one ribose sugar. First between 3 carbon and second is 5 carbon. So two type of ester bond form. These are called diester bond. This is continuous growing chain 3 and 5 carbon and form long chain of nucleotide. Further इसी तरह से अपने पास अटैच होता जाएगा, इस तरह से अपने पास कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, ये कंटिन्यूअसली इसी तरह से अपने पास चेन चलती जाएगी। This chain continuously grow and form polymer of nucleotide, and polymer of nucleotide is known as nucleic acid.